لوگوں کی باتیں ہوتی ہے کہ ہم انتشار پسند پارٹی اور یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. اب ہمارا لیڈر جیل میں ہے, وہاں پہ لیڈیز کو جو ہے پانی واٹر کینن یوز کر کے جو ہے نا ادھر سے اٹھایا جا رہا ہے. وہ ہمارے آنے سے اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی احتجاج ہونے جا رہے, تو یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے. دیکھیں منسٹرز کو یوں کپڑوں سے پکڑا گیا, ان کی جو ہے نا بےزتی کی گئی, یہ کہاں کی روایات ہے؟ کے پی اور پنجاب کا تقابل آپ اس لیے نہیں کر سکتے نا کہ مجھ پہ 20 سال گولے برسائے گئے, میرے گھر سے کم 10 لاشیں نکلی ہے, اور میں وہاں کی ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. جب یہ کہے گا کہ کے پی بھی میرا حصہ ہے, جب میں کہوں جس طرح میں کہتا ہوں کہ لاہور میرا لاہور ہے, کسی کے باپ کا بھی لاہور نہیں ہے, یہ نہ نون کا ہے نہ پی ٹی آئی کا ہے. مجھے ووٹ ملا تو میں ہوں, کسی اور کو ملا تو وہ ہے. یہ نہ نون نے بنایا ہے نہ میں نے بنایا, نہ عمران خان کو قانونی طور پہ باہر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بشرا بی بھی تو باہر بھی نہیں آ رہی نا, وہ تو پیغام نہیں لا رہی, تو ان سے بھی ان کو نہیں ملایا جا رہا. تو یہ محض ایک بہانہ ہے. ہماری جانیں ہی حاضر ہے, ہم خان کو نکالے. اور اس کی مثال یہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب نکلنے کی بات کرتے تو یہ کہتے کہ آپ کی سیٹیں چلی جائے. میری جوتی کے نوک پہ ہوں ایسی سیٹیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ. ناظرین, ڈاکٹر محمد اسرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی صاحب کے ساتھ یہاں لاہور میں ہے, اور ایک دن کل انہوں نے گزارا, آج دوسرا دن چل رہے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. یہ سابق وہاں کے پی کے وزیر بھی ہے, اور مزید نئی منسٹری بھی ملنے جا رہی ہے. میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ کے پی کے وزیر کے ساتھ میں ایک گفتگو کر رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کل ایک دن پورا لاہور میں ایکٹیویٹیز کی ہیں, آج آپ دوسرا دن گزار رہے ہیں, کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایکٹیویٹی اور یہ جو آپ لوگوں کی ایک نئی تحریک ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. اصل میں آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام بھجوایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا سہیل خان افریدی صاحب کو کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ میں جائیں. دیکھیں, ایک تو یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہے کہ ہم انتشار پسند پارٹی اور یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. اب ہمارا لیڈر جیل میں ہے, ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں. عدالت ہمیں کہتے ہیں جی فیملی سے ملاقات کرائے, سی ایم سے ملاقات کرائے. سی ایم دیکھیں ایک چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا, اور وہ جا کے جو ہے نا 10 دفعہ جیل کے سامنے بیٹھ گیا, اس کو ملاقات نہیں دینے دی جا رہی. فیملی کو جو ہے نا وہاں پہ لیڈیز کو جو ہے پانی واٹر کینن یوز کر کے جو ہے نا ادھر سے اٹھایا جا رہا ہے. تو آخری پھر ہمارے پاس ہمارے قانون نے ہمیں پھر ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے پرامن احتجاج کی اجازت دی ہوئی ہے. اس کے لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹس کو جو ہے نا وہ ایکٹیو کرائیں, میرے لوگوں کو پیغام بھجوائیں کہ آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنے. تو ہم اس حوالے سے آئے. اچھا, یہاں پہ نا یہ ایک تاثر بھی ہے کہ جب بھی کوئی غیر ملکی مہمان پاکستان آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج اناؤنس کر دیتی ہے. کل بھی یو اے کی صدر جو ہے نا وہ اسلام آباد تھے, تو آپ لوگوں نے وہی دن چوز کیا, تو آپ اسلام آباد جانے کی بجائے لاہور کو آ گئے. یہ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, ہم کل آئے ہیں, لاہور ہماری سٹی ہے, پاکستان ہے, ہم آ سکتے ہیں, اور ہم نے کوئی احتجاج اناؤنس نہیں کیا. اگر ہم نے اناؤنس کیا تو آپ بتا سکتے ہیں. ہم تو صرف آئے ہیں, اس کو کسی نے اگر احتجاج کا نام دے دیا, یا وہ ہمارے آنے سے اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی احتجاج ہونے جا رہے, تو یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے. ہم لاہور آئے ہیں, بتا کے آئے ہیں, اور کسی احتجاج کے لیے نہیں آئے. آپ دیکھ رہے ہیں کل سے ہم پھر رہے ہیں, ہم نے کہاں احتجاج کیا ہوا ہے؟ جہاں پر بھی روکا جا رہا ہے ہمیں روکا جا رہا ہے. ہم پنجاب اسمبلی گئے, دیکھیں منسٹرز کو یوں کپڑوں سے پکڑا گیا, ان کی جو ہے نا بےزتی کی گئی. یہ کہاں کی روایات ہے؟ یہ تو باہر کی دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے. آج کل آپ اگر دیکھیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پشاور سے آیا ہوں, پنجاب آیا ہوں. آپ ادھر میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے ہر مطلب 2-3 کلومیٹر بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا رشتہ دار رہتا ہے, میری اپنی پراپرٹیز ہے, میرے گھر ہیں, میرے یہاں پہ بزنس چلتا ہے. تو اب وہ پرانا پاکستان تو ہے نہیں کہ مطلب فاصلے اتنے دور ہو گئے. لاہور ہماری سٹی, ہم آتے رہتے ہیں. نہیں, آپ کا لاہور آپ کا ہے, اس میں کوئی دو رائے. اور ہم نے کوئی احتجاج ابھی فی الحال تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں منسٹر رہے ہیں اور اب آپ لاہور میں ہیں, اور گزشتہ جو ہے نا وہ ایک دہائی سے پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں حکومت ہے. یہاں پنجاب میں موسٹلی مسلم لیگ نون کی حکومت رہی. دونوں جماعتیں آپس میں انتہائی جو ہے نا وہ اختلاف رکھتی ہیں سیاسی. آپ کے پی اور پنجاب کا اگر تقابل کریں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں صوبوں کو؟ دیکھیں, کے پی اور پنجاب کا تقابل آپ اس لیے نہیں کر سکتے نا کہ مجھ پہ 20 سال گولے برسائے گئے,
मुझ पे 20 साल ऑपरेशन चलता रहा, मैं मिनिस्टर हूँ ना, मेरे घर से कम 10 लाशें निकली है और मैं वहाँ की एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। इधर मैं आपको जितने भी MPs दिखाऊंगा और हर एक लड़के के घर से 2-2, 3-3 जनाजे निकले हुए हैं, तो वो तो आप मुकाबला ही नहीं करा सकते ना। और दूसरी बात यह है कि मैं भी तब पंजाब का, लाहौर का मुकाबला करूंगा जब आप कहेंगे कि KP भी मेरा हिस्सा है, जब ये कहेगा कि KP भी मेरा हिस्सा है, जब मैं कहूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ कि लाहौर मेरा लाहौर है, किसी के बाप का भी लाहौर नहीं है, ये ना नून का है ना PTI का है, मुझे वोट मिला तो मैं हूँ, किसी और को मिला तो वो है, ये ना नून ने बनाया है ना मैंने बनाया ना इस तरह। तो इस पे हमारी भी 5 साल जो है ना गवर्नमेंट रह चुकी है, तो ये मैं किसी को क्रेडिट नहीं दे सकता। हाँ, मुकाबले की जो आपने बात की, मुकाबला आप इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वहां पे, और मैं आपको ये भी एक बात बताऊं, आज जो यहाँ पर इतनी जो ज्यादा तरक्की है, हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि वहां मैंने जानों का नजराना दे के, ये एक बहुत बड़ी गेम और एक बहुत बड़ा डिबेट है इसमें अगर हम जाएं, इसलिए यहाँ लोग सुकून से सो रहे। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करें, इसीलिए तो हम ये जो सियासी आज़ादी इमरान खान को कानूनी तौर पे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि कानून का बोलबाला हो और हम हर जगह को इस तरीके से बनाएं कि वो पाकिस्तान के हर हिस्से का जो है मुकाबला। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि आपके 2 बजट इस टेन्योर में भी आ चुके हैं KP हुकूमत के। अगर मैं इस बजट की बात करूं तो इसमें आपने कितने जो है ना वो बड़े मंसूबे अनाउंस किए, किस सेक्टर में ज्यादा पैसे लगाए और कौन से बड़े अवामी जो प्रोजेक्ट हैं वो लोगों को दिए? देखिए, हमारे खान साहब की शुरू से 2-3 चीजों पे फोकस थी। उन्होंने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ, ये हमारी सबसे बड़ी एक इशू है, और हमारे साइड पर इसलिए है क्योंकि KP के साथ मर्ज्ड एरियाज आती हैं, और मर्ज्ड एरियाज मैं आपको अगर बताऊं, आगे जाने के बजाय उनको 50 साल पीछे इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर एक इंटरनेशनल गेम के थ्रू एक ऑपरेशंस चलते रहे पिछले सालों में, तो वहाँ हेल्थ के जो हेल्थ के मामला थे और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे मामला थे वो दरहम बरहम थे। तो खान साहब के आने से हमने उस पर काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काम हो चुका है, और अभी भी बजट में हमने हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी बेसिस पे रखा हुआ है, और उसके साथ साथ फिर जो हमारे एग्रीकल्चर और इरिगेशन और वो जो है ना उनको। ठीक है। अच्छा, आपकी बात से मैं ये समझा हूं कि KP हुकूमत का हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा फोकस है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने पिछले 1 दहाइयों में वहाँ पे कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कितनी नई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितने नए स्कूल्स दिए हैं, किस तरह से आपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया? देखिए, पहली बात तो ये ना कि मेरा ये पहला टेन्योर है। आई एम अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर। मैंने जैसे MBBS फिनिश किया तो हम खान साहब के साथ थे, पकड़ा गया, 2 साल जेल में गुजारे और निकला तो सीधा असेंबली में आया। तो पिछले टाइम्स की तो अभी इतने मेरे साथ ज्यादा डिटेल्स नहीं होंगे। अभी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो डे खान जैसी सिटी में हमारा मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स मेडिकल कॉलेज स्टार्ट है, गर्ल्स कैडेट कॉलेज स्टार्ट है। इसी तरीके से मैं आपको अगर बताऊं, हमारा दीर वाले साइड पे हमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी स्टार्ट है। इसी तरीके से और भी हमारे बड़ी यूनिवर्सिटी। दूसरी बात मैं आपको बात बताऊं, हमारे हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा इशू था खान साहब के आने से पहले। मतलब मैं खुद जाता था प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये सरकारी हॉस्पिटल में तो हम जाया ही नहीं करते थे। खान साहब के आने के बाद हमारे सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि सेहत कार्ड की हमें खान साहब ने KP वाली साइड पे, देखिए पूरे पाकिस्तान में चलता है, लेकिन KP के साइड पे एक गुर्बत थी, थोड़े मामलात खराब थे, तो उसने हमें बहुत बूस्ट दिया हुआ है। मेरा सवाल ये था कि कितने हॉस्पिटल्स बने, कितनी यूनिवर्सिटी? मैं आपको यूनिवर्सिटीज के तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे एग्जैक्टली मुझे जो है ना उसके वो नहीं पता। नहीं, मैं आपको अभी दो कैडेट कॉलेज, 2-3 हमारे यूनिवर्सिटीज ये बन रही है। डी खान में मैंने आपको कहा कि अभी एक हमारा कैडेट कॉलेज, एक हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इस तरीके से मैंने आपको ये कहा कि दीर में हमारी यूनिवर्सिटी भी जो है ना वो बन रही है। अच्छा, अब आखिरी सवाल, ये थोड़ा सियासी है और मैं आपसे सियासी सवाल पे सियासी जवाब ही तवक्को करूंगा और बुरा भी ना मनाइएगा। आप सवाल अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब ने जब हल्फ उठाया तो हल्फ उठाते ही उन्होंने कहा कि मैं इश्क़े इमरान में मारा जाऊंगा। अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे, और हमारी नेक तमन्नाएं हैं, बड़ी मोहब्बत है एक इंसान से। और उन्होंने एज ए वज़ीर आला KP हल्फ उठाया था। अब मुझे ये बताएं कि KP के वज़ीर आला की आईनी, कानूनी, सियासी और जमहूरी कौन सी ड्यूटी है कि वो इश्क़े इमरान में मारा जाए, जबकि लोगों ने उसे गुड गवर्नेंस के लिए और लोगों को जो है ना वो अच्छा जो है ना वो डिलीवर करने के लिए मुंतखब किया? देखें, सियासी सवाल का सियासी जवाब भी आप इंशाल्लाह सुनेंगे।
भुट्टो साहब, उनको फांसी हुई, उनकी बेटी बाहर रही, क्यों बाहर रही? उनको तो फिर हम यही कहेंगे कि उसको सिर्फ जो है ना आके सीएम बन के सिर्फ सियासत के साथ काम करना चाहिए था। वो आई, वो पीएम बनी, निकाली गई, फिर आई, मारी गई। उसके बाद अगर आप नून पर नजर डालें, कितनी दफा निकाला गया, डाला गया, और जिस तरीके से सुहेल ने बात की, इसी तरीके से हर एक पार्टी ने जो है अपने लीडर को बचाने के लिए ये बातें की हुई है। आप मुझे एक बात बताएं, इमरान खान ने सुहेल खान को, वो एक पाकिस्तान का एक आम शहरी था, उसको टिकट दिया, वो जीत के आया, वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन गया। तो वो ये नहीं कहेगा कि वो लीडर जो मेरे जैसे आम बंदे को एज ए सीएम बना सकता है, तो उसको कानून के दायरे में रहते हुए मैं अगर बाहर लेकर आने की कोशिश करूं तो आए ये मुनासिब बात नहीं है। और एक इसके साथ एक ही मैं जवाब, वो अगर सुहेल के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है, ये बात की जा रही है, तो मुझे सिर्फ इस बात का कोई जवाब दे कि सुहेल 10 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर लेके जेल के बाहर जाके बैठा रहा, उसको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? ये आपका वैलिड पॉइंट है। अच्छा, उसकी फैमिली अभी तक डेली वो जो है ना हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं और जाते हैं, उन पे वाटर कैनन यूज करते हैं, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अच्छा, अब दूसरी तरफ का मौकफ ये है कि फैमिली को जब मिलने के लिए भेजा जाता है तो वो वहां से जो पैगाम लाती हैं वो रियासती हमलों पे, चाहे अशखास की सूरत में हो, चाहे एक डिपार्टमेंट की सूरत में हो, वो बहुत ज्यादा तल्ख उसका जो है ना वो नैरेटिव बिल्ड होता है, और उस नैरेटिव का फायदा भारत उठा जाता है, उस नैरेटिव का। तो इसलिए वो जो है ना वो रोक रहे हैं। मैं इसकी हिमायत नहीं करता कि वो रोकते हैं। तो इसका आपका क्या है? आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान की सियासत को और रियासती अदारों को आपस में ये कोई लड़वा रहे हैं, ये लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऐसे हमें बाज रहना चाहिए इसी लड़ाई से। अच्छा, पहली बात तो ये है ना कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ इस एक तमगे के अलावा कोई और तमगा है ही नहीं कि आप गद्दार हो। इनको किसी ने कोई और तमगा समझाया ही नहीं है, क्योंकि इनका काम ही ये नहीं है, वो सियासतदानों का काम है। इनके पास सिर्फ एक तमगा है, फलाना गद्दार है, बेनजीर गद्दार है, भुट्टो गद्दार था, ये गद्दार है, वो गद्दार है, पहली बात। दूसरी बात ये, आईन के किसी शिक में आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जेल में है, उससे इसलिए मुलाकात नहीं कराई जाएगी कि वो इस तरह के बाहर पैगामात भिजवाता है या उस तरह के भिजवाता है। उन सारी चीज़ों को से निमटने के लिए पाकिस्तान का कानून है। अगर कोई गैर कानूनी तौर पे पैगाम भिजवाएगा और वो कोई मूवमेंट पे जाएगी तो वो कानून भी और हर चीज़ है। लेकिन ये हक आपको किसी ने नहीं दिया कि आप किसी की मुलाकात बंद करा देंगे इस चीज़ पे कि जी ये गैर कानूनी पैगामात बाहर भेजता है। ये क्या बात हुई? आपके मुझे ये बताएं, मरियम नवाज अंदर थी, कितनी उसके साथ टोलों की मुलाकातें होती थी। नवाज शरीफ साहब अंदर थे, कितने उसके साथ टोलों की मुलाकातें हुआ करती थी। मतलब आप इस चीज को बहाना बना के किसी को कह दे तन्हा में रखेंगे, उसके बेटों से बात नहीं कराने देंगे, उसकी बहनों से मुलाकात नहीं कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी तो बाहर भी नहीं आ रही ना, वो तो पैगाम नहीं ला रही, तो उनसे भी उनको नहीं मिलाया जा रहा। तो ये महज एक बहाना है। अच्छा, मुझे अब बताइएगा कि आपके पास और सुहेल अफरीदी साहब के पास अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कौन सा ऐसा नुस्खा है, कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जिससे हम तवक्को करें कि आप अब रिहा करवा के दम लेंगे? हमारी जानें ही हाजिर है और हम दम ही तब लेंगे कि हम खान को निकालें। और उसकी मिसाल ये है ना कि आपको पता है कि हम जब निकलने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपकी सीटें चली जाए, मेरी जूती के नोक पे हों ऐसी सीटें। और जिस तरह सुहेल कहता है कि ये सीएमशिप मेरी जूती के नोक पे हो, हमें ये पता है गवर्नर राज लगाएंगे 200 दफा लगाए, कुर्सियां जाएंगी 200 दफा जाए, हम उस हर हद तक जाएंगे कानून के अंदर रहते हुए इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कि उसमें हमें कुछ भी उठाना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।